Assalamu alaikum, dear student. Today we will start the last topic of this chapter, that is the S block element. In today's topic, you will study the occurrence of carbon and silicon, as well as the peculiar behavior of carbon. At the end of this chapter, you will also solve the exercise in today lecture. So first we will see the occurrence of carbon in naturally occurring form. Carbon mostly exists in two form. You have seen the nature of carbon in graphite form, as you have used the uh, lead pencil in the form of graphite, and the second one form of carbon is known as diamond. So we can say that carbon will mostly exist in two state. One state is known as diamond and other form is known as graphite. The another form of carbon is also known as the amorphous form, which is known as coal and charcoal. मोस्टली बच्चों आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि जो कोयला होता है वो अमॉर्फस फॉर्म, यानी अमॉर्फस का मीन होता है पाउडर लाइक, यानी इसमें किसी किस्म की क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसको हम अमॉर्फस फॉर्म का नाम देते हैं। और कार्बन जो है वो मोस्टली थ्री मेन स्टेट के अंदर जो इसकी मिनरल्स हैं, जो इसकी नमकियात हैं कार्बन की, वो तीन फॉर्म में होती है। वन फॉर्म इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है? दैट इज दी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम लाइमस्टोन या कैल्साइट का नाम देते हैं। द सेकंड वन फार्मूला इज नोन एज डोलोमाइट। डोलोमाइट का फार्मूला होता है जी मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। The third one formula of carbon mineral is magnesite, and its formula is magnesium carbonate, that is MgCO3. Now we will see the occurrence of carbon. Silicon is also a very abundant element in the nature, and it almost constitute about 25% of the earth crust. Earth crust means the surface of the earth. So we can say that the earth surface is made by silicon, aluminum and oxygen. The major concentration which forms the surface of earth, that is the oxygen, which almost take about the 50% of the earth crust. The second one element, that is the silicon, and the third most abundant of the earth crust element is aluminum. So we can say that silicon, unlike carbon, it is not also found in the free state. It means it will also exist in the mineral form. And the mineral of the silicon, the first one mineral is analcite, which is also known as a zeolite. जियोलाइट बच्चों वो कंपाउंड होता है जो कि हम मोस्टली वाटर के अंदर, जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर जो हार्डनेस आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, उनकी रिमूवल के लिए हम इस मिनरल को इस्तेमाल करते हैं। और इसका फार्मूला बच्चों आपने जियोलाइट का, जिसका एक और नाम क्या है जी, एनलसाइट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। और इसका फार्मूला क्या है? एक सोडियम का आइटम है डॉट एक एल्यूमिनियम का आइटम है, और इसके साथ सिलिकेट आयन, दैट इज SiO3 ट्वाइस है डॉट वन वाटर का molecule है। The another mineral of silicon is known as asbestos, and its formula is CaMg3SiO3 whole 4। इसे हम कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का नेम देते हैं। The third one mineral of silicon is kaolin, जिसे हम पोट्री क्ले, यानी जो बर्तन बनाने की जो मट्टी होती है, यानी जिससे हम ये मट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसके अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसका फार्मूला होता है जी H2AlSiO4 whole twice dot water molecule। Another formula of silicon, that is known as the zircon। zircon क्या होता है जी? zirconium silicate, और इसको हम कैसे लिखते हैं? ZrSiO4। Another formula of silicon is talc, जिसे हम soapstone का भी नेम देते हैं। और talc क्या है जी? हमारे पास इसमें कैल्शियम के बजाय हमारे पास दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है? H2Mg3SiO3 whole 4। Now you can see here the most important quartz and opal of the world. Uh, and in the formation of these quartz, silicon will play a major role, because this silicon is a major constituent of rocks। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो सिलिकॉन है वो ज़्यादातर जो हमारी चट्टानें हैं उनका मेजर कम्बिनेशन जो है वो फॉर्म करता है, और ये मोस्टली सिलिका या सिलिकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
इसके अलावा जो बहुत सारी मिनरल्स होती हैं अदर देन सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, उनके अंदर भी मेजर प्रोपोर्शन किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। उसके बाद बच्चों अगर हम मूव करें ऑक्साइड की जानिब के सिलिकॉन का कम्बिनेशन हो ऑक्सीजन के साथ, कि किस तरह से जब भी हम सिलिका की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सिलिकॉन जो है वो कंबाइन हो जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इट मीन व्हेन सिलिकॉन ऑलवेज कंबाइन विद ऑक्सीजन टू एटम, then they will produce a silica, and the silica will play its role in the formation of quartz। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं? क्वार्ट्स का नाम देते हैं। अब क्वार्ट्स क्या चीज़ है? क्वार्ट्स एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो इनसे सिलिका का, और सिलिका यानी SiO2 या इसे हम ऑक्साइड बोलते हैं, ये फॉर्म होते हैं और इस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं जी? क्वार्ट्स का नेम देते हैं। तो अब बच्चों हम अपने टॉपिक की जानिब जाते हैं और इसमें हमने क्या बात की कि ऑक्साइड की फॉर्म में जब सिलिकॉन होता है तो ये मोस्टली क्वार्ट्ज, यानी क्वार्ट्ज, ये सारी क्वार्ट्ज जिसे हम नगीने का नाम देते हैं उर्दू के अंदर, तो इनकी ये डिफरेंट फॉर्म्स है क्वार्ट्ज के, और इन पांचों के नेम आपने बच्चों याद करने हैं। नंबर 1 इसकी फॉर्म होती है, इसे हम बोलते हैं रॉक क्रिस्टल। सेकंड होता है जी एमिथाइस क्वार्ट्स, ये देखें ये है एमिथाइस क्वार्ट्स, और ये ऐसा नगीना होता है जिसका कलर जो है वो बिल्कुल डार्क जामनी होता है। उसके बाद थर्ड वन है जी स्मोकी क्वार्ट्ज, ये इस तरह का है जिसका कलर स्मोक की तरह का होता है। फोर्थ वन है जी ये इस तरह का रोजी क्वार्ट्ज, जैसे हम रोज क्वार्ट्ज का नाम देते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज मिल्की क्वार्ट्ज, यानी इसका कलर दूध की तरह का वाइट होता है। तो ये डिफरेंट जो है वो क्वार्ट्ज की फॉर्म है और इनके नेम, और आपने एज इट इज तैयार करने हैं। और सैंड को अगर आप देखें तो सैंड क्या है? बेसिकली सिलिका होता है। सिलिका का फार्मूला भी आपको लिख के बताया, दैट इज SiO2। और ओपेल को बच्चे हम बोलते हैं नगीने, यानी जो दुनिया के अंदर जो डिफरेंट तरह के वर्ल्ड के अंदर जो ये इस तरह के ओपेल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, वो सारी की सारी इसकी हाइड्रेटेड वराइटी होती है, यानी सिलिका दैट इज SiO2 के अंदर डॉट वाटर के मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं। अब बच्चों आपको थोड़ा सा मैंने इन फार्मूलाज के हवाले से बताना था कि अभी हमने बात की दैट इज एनालसाइड के हवाले से, और एनालसाइड का फार्मूले को भी मैं आपको लिख के बताती हूँ कि इसके अंदर अगर आप देखें बच्चों तो इसका फर्स्ट वन फार्मूला हमारे पास क्या है? दैट इज NaAl.SiO3 एंड देन ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है? एनल साइड का फार्मूला है, जिसे हमने क्या नेम दिया? जियोलाइट का भी नेम दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करके बताती हूँ कि इसकी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं किस तरह से। तो बच्चों अगर आप देखें तो आपको मैंने पहले बताया था कि एक SiO3 पर चार्ज क्या होता है? दैट इज -2। इट मीन अगर हमारे पास इसके साथ दो एटम होंगे तो इट मीन टू सिलिकॉन एटम पर हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 के साथ, देन इट विल बी इक्वल टू -4, इसकी वैलेंसी आ जाएगी। तो इट मीन इसकी वैलेंसी क्या होगी? राउंड अबाउट -4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको बताया था कि एक कंपाउंड होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इस पर एल्यूमिनियम पर चार्ज क्या होगा जी? दैट इज +3। इसी तरह एक सोडियम जो कि ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंसी क्या होगी? +1 के करीब होती है। तो इससे हमें ये पता चला बच्चों कि अगर आप इनको देखें तो यहाँ से इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है हमारा, ये ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पर एक सिलिकेट आयन दैट इज SiO3 - 2 होता है। तो क्योंकि इसके फार्मूला में दो आयन है तो इसकी वैलेंसी को आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्दर 2 से, तो ये हो जाएगा -4। तो +4 एंड -4 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा पिछला फार्मूला है कि आपको ये बताया था कि एक मिनरल या एक और जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होती है, वो इसको फुलफिल करती है। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आई होगी कि इसके अंदर साथ एक वाटर के मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन को आपने तैयार करना है। इसी तरह केओलिन के फार्मूला में भी अगर आप देखें तो SiO3 हो या SiO4 हो, दोनों की वैलेंसी क्या होगी? -2 होगी अगेन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आई थिंक ये इसके फार्मूले में कुछ गड़बड़ है क्ले के फार्मूले में, क्योंकि H2 नहीं होगा बच्चे, ये सिर्फ सिंगल एक H होगा। क्योंकि चले मैं इसके फार्मूला को भी आपको कंफर्म कर देती हूँ।
हम्म, अच्छा, बच्चों इसके फार्मूला के अंदर एक मिस्टेक ये है कि इसके फार्मूला में जो एल्यूमिनियम है ये एक लिखा गया है, बल्कि जबकि यहाँ जो है वो एक्चुअल में एल्यूमिना के दो एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट फार्मूला लिख के। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी जी, दैट इज योर केओलिन। केओलिन, ठीक है। केओलिन, या जिसे हम पोट्री क्ले का भी नेम देते हैं, इसका बच्चों एग्जैक्ट फार्मूला होता है दैट इज A टू Al2। उसके बाद होगा आपके पास SiO4 होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसका जो है वो हमारे पास फार्मूला है, और इसके अंदर जो है वो एक वाटर का मॉलिक्यूल शामिल होता है। तो जहाँ से मेरा ख्याल है या तो ये लिखने में कोई प्रॉब्लम बनी है। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट फार्मूला है। और इसके हवाले से बच्चों आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि अगर आप एक SiO4 के एटम को देखेंगे ना, तो इसके ऊपर वैलेंसी होती है बच्चों एक के ऊपर -4। ठीक है, जबकि अगर आप एक SiO3 के एटम को देखेंगे तो उसमें एक SiO3 के एटम पर वैलेंसी होती है दैट इज -2। ठीक है, तो ये बात आप लोग हमेशा जहन में रखिएगा कि जब भी आपने इस हवाले से डिस्कस करना हो तो आपके माइंड में ये बात क्लियर हो कि एक SiO4 पर वैलेंसी क्या होगी, -4। इसी तरह एक SiO3 के ऊपर वैलेंसी क्या होगी, दैट इज -2। तो चूंकि एक SiO4 पर वैलेंसी -4 है, तो दो पर जी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -8 के इक्वल होगी। तो अगर आप इसको अगर लिखें, तो ये बच्चे बनती है दैट इज -8, क्योंकि -4 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये होता है जी -8। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम ग्रुप थर्ड का मेंबर है, तो एक एल्यूमिनियम पर वैलेंसी क्या होगी, +3। तो दो पर वैलेंसी क्या हो जाएगी, उसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, राउंड अबाउट +6 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी आ जाती है। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन की ड्रॉ करते हैं, तो हाइड्रोजन की बच्चों बनती है एक हाइड्रोजन की +1। तो चूंकि दो हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगी +2। तो +6 और +2 इक्वल टू +8, एंड -8 will also balance this equation. So overall the formula of kaolin, that is H2Al2SiO4 whole twice dot 1 water molecule के ये इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ ये बात आपको क्लियर हुई होगी बच्चों। तो यहाँ से हमें आइडिया ये हुआ कि हमारे पास चाहे जियोलाइट हो, एस्बिस्टॉस और आपको टैल का, इन दोनों का फार्मूला आप इसी तरह ही अप्लाई कर सकते निकाल सकते हैं। ये बात मैंने वैसे आपको इन दोनों फार्मूलाज की लास्ट लेक्चर्स में ये बता दी है, तो इसलिए मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये क्वार्ट्स की डिटेल भी बता दी और ये डिफरेंट तरह के ओपेल्स के बारे में बताया। अब बच्चों हम देखते हैं दैट इज दी पिकुलियर, यानी जो पर्टिकुलर या एबनॉर्मल बिहेवियर है कार्बन का अपने रिमेनिंग मेंबर से, वो ये है कि कार्बन जो है वो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है और इसकी प्रॉपर्टीज अपने रिमेनिंग मेंबर से डिफरेंट होती है। और इस पूरे ग्रुप में कार्बन और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल्स कंसिडर की जाती हैं, जबकि जो इसके अदर मेंबर्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं, दैट इज मेटलॉइड्स, यानी इनकी नेचर जो है वो मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होती है।
इसके बाद बच्चों अगर आप फर्दर देखें तो हम ये कहते हैं कि जो कार्बन है इसके अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज का। यहाँ देखें, यहाँ एक कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड जो है बनाता है। और ये आप जानते हैं कि ये बेस बनाती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इन सब की फॉर्मेशन में कार्बन एलिमेंट जो है वो मेजर अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। और इसकी कैटिनेशन की बदौलत ये सारे कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें कार्बन अपने दूसरे एलिमेंट दैट इज कार्बन के साथ ही कंबाइन हो, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकेज, यानी एक दूसरे का दूसरी चीज के साथ जुड़ जाना, यानी आपस में एक दूसरे के साथ लिंक अप हो जाना। ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन, या फिर क्या नेम देते हैं? सेल्फ लिंकेज का नेम देते हैं। तो ये कहते हैं कि जिस तरह ये सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी इनके अंदर एग्जिस्ट होती है, ये प्रॉपर्टी इस पूरे ग्रुप में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। यानी कैटिनेशन की ये एबिलिटी मैक्सिमम है कार्बन के अंदर जी, और मिनिमम है किसके अंदर? लेड के अंदर। तो इट मीन हमें ये पता चला कि जो मैक्सिमम टेंडेंसी होती है कैटिनेशन की, ये कार्बन एलिमेंट के साथ जो है वो बेस करती है। और यही प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनकी बेस फॉर्म करती है। यहाँ तक बच्चों आपका स्मार्ट सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूड था। उसके बाद वाले टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो आपने अब आगे जो है वो इसके एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो स्टडी करनी है। इनमें फर्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक्स थी आपकी कि इसका आंसर है जी मेटाबोरिक एसिड हैज द केमिकल फार्मूला ऑफ HbO2। सेकंड वन है कि एल्यूमिनियम नॉर्मली अकर एज डैश मिनरल्स फाउंड इन द रॉक ऑफ द आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ में जो आपके पास मिनरल्स होती हैं दैट इज नोन एज द एल्यूमिनो सिलिकेट। थर्ड वन है कि एल्यूमिना कौन सी गैस रिलीज करता है जब उसका रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कंसंट्रेटेड से करते हैं? तो आपको ये रिएक्शन में बताया था, दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर फोर है कि बोरोन जो है वो तीन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है अपने कंपाउंड्स में। नंबर फाइव है कि इस केमिकल फार्मूला वाइट लेड का, चूंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन आप लोग इसका फार्मूला जरूर तैयार कर लें, दैट इज 2 PbCO थ्री डॉट PbOH ट्वाइस। उसके बाद है कि जी बोरोन इज द ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल दैट इज नॉट अ मेटल। उसके बाद आती है नेक्स्ट वन की इन दी ग्रुप थर्ड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डैश इज अ सेमी मेटल। तो बोरोन जो है वो अपने ग्रुप में एक सेमी मेटल है। उसके बाद बोरोन बोरेक्स जो है वो नेचुरल डिपॉजिट की फॉर्म में किस शक्ल में एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ टिंकल। क्रायोलाइट का आगे फार्मूला पूछा उन्होंने आपसे, और इसका फार्मूला होता है दैट इज Na3AlF6। नंबर 10 है जी के a semiconductor is a substance that has different resistance to the passage of an electric current under different circumstances। उसके बाद बच्चों आपके ट्रू फॉल्स थे। इसमें फर्स्ट वन है कि बोरोन जो है वो यूज करता है ऑल द थ्री ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बात दुरुस्त है क्योंकि देखें बोरोन ग्रुप थर्ड का मेंबर है और ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करता है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद है जी डायस्पोर। डायस्पोर कार्बन की ओर नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरह एमराल्ड एक और है एल्यूमिनियम की, तो ये बात भी गलत है। उसके बाद है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज फीबली एसिडिक इन नेचर। तो ये एसिडिक नहीं होता बच्चे, बल्कि ये अल्कलाइनिक होता है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। बोरेक्स बीड टेस्ट में बीड्स आर कलर्ड ब्लू इन द रिड्यूसिंग फ्लेम। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में नहीं बल्कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इसका कलर ब्लू होता था, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। उसके बाद नंबर 6 है कि बोरिक एसिड को हम टाइट्रेट कर सकते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाफ्थलीन, और जब आप यूज करते हैं और ग्लाइसरीन को आप यूटिलाइज करते थे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद है कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों जो है वो नॉन मेटल्स हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। लेड ऑक्साइड हम कॉमनली लिथार्ज का नाम देते हैं, ये आपने चूंकि पिगमेंट्स नहीं पढ़े लेकिन आप ये स्टेटमेंट तैयार कर लीजिएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बेसिक लेड कार्बोनेट जो है वो एक रेडिश ब्राउन पिगमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम बॉक्साइट नहीं बोलते क्योंकि इसके साथ टू वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं। इसके बाद बच्चों जो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आप अपनी बुक से इस पूरे चैप्टर को तैयार करके पढ़ चुके हैं उसकी तो मैं आपको रिव्यू नहीं करवाऊंगी, लेकिन जो चीज़ें आपकी बुक के इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड नहीं है वो मैंने आपको बता दी है सिर्फ। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 5 में पहली इक्वेशन थी कि बोरस का रिएक्शन लिखिए कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ। तो कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ जब ये मिलते हैं दोनों तो क्या बनाते हैं? कोबाल्ट मेटाबोरेट दैट इज CO BO2 ट्वाइस। तो इसका फार्मूला क्या है? दैट इज CO BO2 ट्वाइस है। इसी तरह एल्यूमिना का रिएक्शन NaOH के साथ, वैसे ही बुक में दिया हुआ है लेकिन तो आप लोगों ने इस इक्वेशन को भी एज इट इज तैयार करना है।
उसके बाद बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की ए पार्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर इन नेचर होता है, इस बात को एक्सप्लेन कीजिए। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर किस तरह से कि यहाँ देखिए, अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री के एंगल पर है, तो इस स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड चूंकि 180 डिग्री के एंगल पर है, तो इनका बॉन्ड मूवमेंट या आप कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट अगर आप देखें तो डाइपोल मूवमेंट क्या करता है कि इस साइड के बॉन्ड के इफेक्ट को ये सेकंड साइड का जो ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी को हम डिटरमिन ही किस बेस पर करते हैं, बॉन्ड मूवमेंट की बुनियाद पर, म्यू जिसे हम बोलते हैं या डाइपोल मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं। जब डाइपोल मूवमेंट किसी भी कंपाउंड का जीरो हो जाए, और जीरो यहाँ पे किस तरह से है क्योंकि ये 180 डिग्री के एंगल पर है, तो एक साइड का पोलर बॉन्ड दूसरे साइड की पोलैरिटी को कैंसिल आउट कर रहा है। एज ए रिजल्ट ये ओवरऑल बॉन्ड क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, और इसका डायपोल मोमेंट जीरो होने की वजह से इसकी नेचर क्या हो जाएगी, नॉन पोलर होगी। उसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होती है। उसकी रीजन क्या है कि जब आप इसको वाटर के साथ डील करते हैं तो इससे जो एसिड फॉर्म होता है दैट इज नोन एज द कार्बोनिक एसिड, और इसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज H2CO3। और इसकी एसिडिटी को हम और भी मजीद कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आप इसका डायरेक्ट रिएक्शन NaOH से करवाएं तो इससे सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर की जनरेशन होती है। तो इस तरह से इसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक होगी, क्योंकि बेस के साथ रिएक्ट करने पर हमेशा एसिड जब मिलते हैं तो इन्हीं से ही साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास CO2 की एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है कि वाई CO2 इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर वाइल SiO2 इज अ सॉलिड। तो इसकी रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अभी आपने पढ़ा कि ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसका बॉन्ड मूवमेंट या डायपोल मूवमेंट जो है वो जीरो होने की वजह से नॉन पोलर होता है। और चूंकि इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हैं, तो जिस भी मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो वो चीज़ मोस्टली गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि गैशियस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ना होने के बराबर होती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि CO2 जो है वो वीक फोर्सेस जो है वो रखता है, जिसकी वजह से एक गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। While in case of SiO2, it will exist as a polymer with alternating silicon and oxygen bond। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर आपको मैंने इसके सेकंड लास्ट लेक्चर में आपको इसके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करके बताए थे, जिसमें आपने एक बॉन्ड सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ, फिर सिलिकॉन के साथ, इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में वो स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करने हैं, और इससे एक बिग मॉलिक्यूल जो है वो SiO2 का फॉर्म होगा, और वो जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से इसकी नेचर क्या होगी, सॉलिड होगी। तो उसके बाद बच्चों आपकी एक लास्ट क्वेश्चन मजीद था कि बोरेक्स हम कहते हैं कि यूज करते हैं एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पे। बोरेक्स क्या होता है, दैट इज Na2B4O7, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि जितना भी वाटर हार्ड होता है वो दो आइंस की प्रेजेंस की वजह से होता है। वन इज नोन एज द कैल्शियम आइन एंड अदर इज नोन एज अ मैग्नीशियम आइन। तो जैसे ही आप बोरेक्स को इन आइंस अगर किसी वाटर की हार्डनेस का सबब बन रहे हैं और उस वाटर में आप बोरेक्स को ऐड करते हैं, तो बोरेक्स के अंदर क्या होगा कि सोडियम मेटल आजाद हो जाएगी, और कैल्शियम आयन डायरेक्टली के साथ मिलके इन कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट इज कैल्शियम बोरेट एंड मैग्नीशियम बोरेट इन द फॉर्म ऑफ CaB4O7 एज वेल एज MgB4O7। तो इस तरह से जो है ये सॉल्युबल हो जाएंगे, और सॉरी इनसॉल्युबल होकर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो जब आप उसको फिल्टर कर लेंगे तो जो वाटर आपके पास आएगा उसके अंदर अब हार्डनेस रिमूव हो चुकी होगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बोरेक्स जो है वो अपना रोल प्ले करता है एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट के तौर पे। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।